Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Dear colleagues and my dear PGs, in the last video, we discussed the hepatitis B virus, the Varon structure, and we discussed it exists in three forms: the Dane particles, which is the infectious particle, and two non-infectious particles in the form of either the sphericals or the microfilaments. And then we discussed the genome, the parts of the genome, the open reading frames, the S, the P, the C, and the X open reading frames. And we found that which open reading frame encodes for which proteins. Today, we will discuss the life cycles of the hepatitis B virus. What are the steps in the life cycle of it when it enters the human, reaches the liver and enters the hepatocytes? What are the different steps of its life cycle, and what are its clinical implications? This is important to know about the essential details of the life cycle of the hepatitis B virus, because the therapies which are existing, they also act at the some stage of the specific stage of the hepatitis B virus life cycle. But more importantly, the drugs which are in the pipeline, which are the future drugs, and hopefully we will get these drugs in the future couple of years, they will be acting on the different steps of the hepatitis B virus in an attempt if we can eradicate this hepatitis B virus from the body. Because with the current therapies, we are only able to control the proliferation. We haven't been able to cure the patients from this hepatitis B virus. We are not able to eradicate this hepatitis B virus from the hepatocytes of the patient. So this is important. तो शुरू करते हैं कि what are the different steps of the life cycle of the hepatitis B virus and what are its clinical components. तो जिस तरह मैंने बोला कि today we are going to discuss the HBV life cycle and its clinical implications. Starting from the basic concepts, we discussed this in the last video कि hepatitis B varon, Dane particle या infectious particle के जो components है, surface antigen है जो कि it may be in the form of the small one or the middle size or the large size. इसके बाद नीचे फिर इसका E antigen होता है, envelope, और इसके बाद nucleocapsid होता है, which has the core antigen as well as the relaxed circular DNA and the DNA polymerase. This is we discussed in the last video. ये 3D model है, again the same thing, ताकि मजीद आपको concepts आ जाए. ये इसका bilipid layer membrane है और ये इसका जो small surface proteins हैं, ये middle size या middle surface protein है और ये large surface protein है. And inside resides the E antigens पर ये nucleocapsids है. Nucleocapsids में ये DNA polymerase है और ये double stranded DNA relaxed circular DNA है. ये 3D structure है what we saw here, जो कि cross sectional structure हमने देखा था. We all know कि hepatitis B virus अपने साथ लाता क्या है? HBs antigen, E antigen, core antigen and the DNA, और human body इसके against बनाती है anti-HBs, and with the help of this anti-HBs antigen को सीरो कन्वर्ट कर सकती है उन पेशेंट्स में कि जिनमें surface antigen नेगेटिव हो जाता है, और E antigen के लिए anti-HB बनाती है, और सीरो कन्वर्जन का मतलब भी होता है कि HBe antigen becomes negative and anti-HB becomes positive clinically. HB core antigen को अब तक हम clinically लैब में डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी ये मार्कर आ गया है रिसर्च प्रोटोकॉल्स में, और होपफुली इन फ्यूचर में ये आएगा, एंड दिस विल बी अ वेरी गुड प्रेडिक्टर ऑफ द पेशेंट्स प्रोग्नोसिस. लेकिन व्हाट वी कैन डू, जो एंटीबॉडीज बॉडी अगेंस्ट कोर एंटीजन बनाती है, तो वी कैन डिटेक्ट दीज the IgM and the total IgM उस वक्त में कि जब patient has got acute hepatitis B, and total उस वक्त कि जिस वक्त patients chronic phase में चला जाता है, and we can detect the DNA polymerase, and on the basis of this हम decide करते हैं कि हमारा patient किस stage में है. ये फिर जब हम serology पढ़ेंगे इनकमिंग वीडियो में, तो फिर मैं ये डिस्कस करूंगा.
आइए देखते हैं, जाते हैं फॉर द लाइफ साइकिल। ये है ये क्योंकि मैंने खुद अपने तौर पे ड्रा किया है, तो इसमें एग्जैक्टली ऐसे ही रेप्लिका शायद नहीं होगा जिस तरह के आप गूगल या नेट पे देखते हैं। ये खुद मैंने बनाया हुआ है, एंड इन एन अटेम्प्ट इसको सिंप्लीफाई करूं और कॉन्सेप्ट्स आपको दे सकूं कि व्हाट आर द बेसिक एसेंशियल स्टेप्स इन दी हेपेटाइटिस बी लाइफ साइकिल एंड व्हिच आर इंपॉर्टेंट फॉर दी अपकमिंग फ्यूचर थेरेपीज। सो दिस इज दी हेपेटाइटिस बी वायरस। ये उसका न्यूक्लियोकैप्सिड्स है, ऊपर इसका ये सरफेस एंटीजन लिपिड मेम्ब्रेन है और सरफेस एंटीजन है, इरिस्पेक्टिव कि ये स्मॉल है, इंटरमीडिएट है या लार्ज है। एंड दिस ये हेपेटोसाइट्स है, और ये हेपेटोसाइट्स के अंदर न्यूक्लियस है। तो जब ये एंटर होता है, व्हाट इट एंटर्स द न्यूक्लियोकैप्सिड एंटर्स द हेपेटोसाइट्स, सरफेस एंटीजन बाहर की तरफ रह जाता है। सरफेस एंटीजन को ये अपने साथ अंदर लेके नहीं आता, सरफेस एंटीजन बाहर रह जाता है और सिर्फ न्यूक्लियोकैप्सिड साइटोप्लाज्म में इंटर हो जाता है थ्रू दी सेल मेम्ब्रेन ऑफ दी हेपेटोसाइट्स। और इसके बाद ये फिर सीधा ट्रेवर करता है न्यूक्लियस को। ये इंटर हुआ, सरफेस एंटीजन बाहर छोड़ दिया, और अभी ये न्यूक्लियस की तरफ ट्रेवल करता है। ये भी न्यूक्लियस में इंटर होता है तो इट एंटर्स इन द फॉर्म ऑफ द रिलैक्स सर्कुलर डीएनए। ये जो हमने देखा था, ये रिलैक्स्ड होता है, यानी फुली ये क्लोज नहीं होता। एंड सून इट कन्वर्ट्स इनटू द सीसीसी डीएनए, कोवेलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए, कोवेलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए। और ये दिस इज द इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ इट, बिकॉज ये जो सीसीसी डीएनए होता है, ये इरिस्पेक्टिव ऑफ द फेज ऑफ द क्रोनिक हेपेटाइटिस, आया ये इम्यून टॉलरेंट फेज है, इम्यून रिएक्टिव फेज है, इम्यून कंट्रोल फेज है, इम्यून एस्केप फेज है, या इन अदर वर्ड्स आया ये एचबीई एंटीजन पॉजिटिव इन्फेक्शन है, या एचबीई एंटीजन पॉजिटिव हेपेटाइटिस है, या एचबीई एंटीजन नेगेटिव इन्फेक्शन है, या एचबीई एंटीजन नेगेटिव हेपेटाइटिस है, या इवन एचबीएस एंटीजन नेगेटिव स्टेज है जिसको हम सो कॉल्ड रिकवर्ड स्टेज बोलते हैं। उस स्टेज में भी ये सीसीसी डीएनए बॉडी में एग्जिस्ट करती है। तो जैसे ही पेशेंट इन्फेक्टेड हो जाता है, आया वो एक्यूट हेपेटाइटिस है, वो क्रोनिक हेपेटाइटिस है, या सो कॉल्ड रिकवर्ड हेपेटाइटिस है, हर फेज में, हर स्टेज में सीसीसी डीएनए बॉडी में एग्जिस्ट करती है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। और दिस जब तक हम सीसीसी डीएनए को निकाल नहीं पाएंगे, हमारे पास ऐसी ड्रग्स नहीं होंगी कि जो इस सीसीसी डीएनए को क्लियर कर सकें, उस तक हम ये नहीं कह सकते कि वी कैन eradicate hepatitis B virus from the body. We can only control hepatitis B virus proliferation, or to control that we try to prevent the inflammation. और इन्फ्लेमेशन जब हम प्रिवेंट करते हैं तो उसके सीक्वेल हम प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज इंपॉर्टेंट स्टेप्स। सरफेस एंटीजन बाहर रहा, न्यूक्लियोकैप्सिड अंदर आया, न्यूक्लियस से अंदर गया, न्यूक्लियस के अंदर ये सीसीसी डीएनए की सूरत में था रिलैक्स्ड आरसीसी डीएनए, इसके बाद फिर सीसीसी ट्रिपल सी डीएनए की सूरत में हो गया। ये दिस इज हाउ इट हैपेंस। ये जब इंटर होता है तो फर्स्ट ये रिलैक्स्ड सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है। ये इसका 3 टर्मिनल है, ये इसका 5 टर्मिनल है, ये इसको ये व्हाट इट फॉर्म्स नेगेटिव एंड पॉजिटिव स्ट्रैंड। ये इधर में दिखाया गया है कि हाउ इट लुक्स व्हेन यू स्ट्रेच इट। और उसके बाद हाउ इट चेंजेस इनटू दी CCC ट्रिपल सी डीएनए। तो ये स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में रिमूवल ऑफ द पॉलीमरेज एंड ऑफ द रिडंडेंट सीक्वेंसेस। पहले स्टेज में ये रिमूव हो जाते हैं, सेकंड स्टेज में रिमूवल ऑफ द आरएनए प्राइमर, ये रिमूव हो जाता है। इसके बाद कंप्लीशन ऑफ द वायरल पॉजिटिव डीएनए स्ट्रैंड, ये कंप्लीट हो जाता है, जो कि इनकम्प्लीट है। लेगेशन ऑफ द डीएनए एक्सट्रीमिटीज, इसको लैगेट किया जाता है, और उसके बाद इट चेंजेस इनटू दिस फॉर्म। देखिए ये इनकम्प्लीटली था, रिलैक्स था, यहाँ पे completely closed, covalently closed circular. Therefore, fifth is the association of the cellular proteins, and this is then the shape of the covalently closed circular DNA. तो ये स्टेप, ये जो मैं कह रहा था कि जब ये रिलैक्स सर्कुलर डीएनए होता है तो ये ट्रिपल सी डीएनए में होता है, तो दिस स्टेप्स फॉर्म्स। ये रिलैक्स सर्कुलर डीएनए है, ये ट्रिपल सी डीएनए है, एंड दीज आर द 5 स्टेप्स, 4 यहाँ पे, और 5th स्टेप में फिर प्रोटीन इसके साथ अटैच हो जाते हैं। सो दिस इज द होल स्टोरी विच कम्स
और जब ये ट्रिपल सी डीएनए हो जाता है तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देयर इज ट्रांसक्रिप्शन इनटू मैसेंजर आरएनएज 4 टेम्पलेट्स। तो ये फिर मैसेंजर आरएनए बनाती है और ये 4 टेम्पलेट्स बनाती है। और मैसेंजर आरएनए यू नो दैट कि इसका काम ये होता है कि ये मैसेजेस जाते लेके जाती हैं प्लाज्मिक रेटिकुलम पे, कि वहाँ पे ये प्रोटीन्स बनाती है। तो ये फिर मैसेजेस देता है कि आप यही प्रोटीन बनाएं जो कि मेरे एग्जिस्ट करने के लिए, मेरी लाइफ के लिए जरूरी है। व्हाट आर दोज? एक मैसेंजर आरएनए बनाता है एचबीएस एंटीजन, यानी ट्रिपल सी डीएनए बना, तो अब ये ट्रांसक्रिप्ट करता है 4 टेम्पलेट्स को या 4 टाइप्स ऑफ मैसेंजर आरएनएस को। इनमें से एक मैसेंजर आरएनए बनाता है एचबीएस एंटीजन, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा टेम्पलेट बनाता है कैप्सिड एचबीई एंटीजन। एचबीई एंटीजन न्यूक्लियोकैप्सिड बनाता है। इसके बाद होता क्या है कि 2 स्टेजेस होती हैं, इसमें चेंजेस आती हैं। एक में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होती है, जिसमें माइनर स्ट्रैंड ऑफ द सी डीएनए बनती है फ्रॉम प्री जीनोमिक आरएनए। तो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप में सिंथेसिस ऑफ द पॉजिटिव डीएनए फ्रॉम द नेगेटिव डीएनए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 स्टेप्स होके इसको इनकैप्सुलेशन बोलते हैं कि फिर यहाँ पे ये जो कैप्सिड बनता है, इस कैप्सिड में भी डीएनए का पार्टिकल आ जाता है। ये सिर्फ कैप्सिड होता है। इसके बाद इस कैप्सिड में जब डीएनए इंटर करा देता है, डीएनए बना के जब इंटर करा देता है, तो इसको इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे सरफेस एंटीजन बना, यहाँ पे पहले कैप्सिड या न्यूक्लियोकैप्सिड बना। इसके बाद इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के जरिए वो जो प्री जीनोमिक आरएनए था, उससे पहले नेगेटिव स्ट्रैंड डीएनए बना और उसके बाद फिर पॉजिटिव स्ट्रैंड डीएनए बना, और वो इसमें इंटर करा दिया जाता है, इंटर हो जाता है, जो कि और इस प्रोसेस को बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। और फिर ये जो इनकैप्सुलेशन इज इन द फॉर्म ऑफ द न्यूक्लियोकैप्सिड। तो पहले कैप्सिड ई एंटीजन बना, इसके बाद इसमें डीएनए अंदर दाखिल करवा के इसको न्यूक्लियोइक कैप्सिड के तौर पे बना। तो एक एंड पे आपका एचबीएस एंटीजन या सरफेस एंटीजन अंदर बना है और दूसरे एंड पे न्यूक्लियोइक कैप्सिड बना है। और जब ये दोनों बाहर आएंगे तो बाहर एचबीएस एंटीजन जब सिक्रीट आउट हो जाएंगे हेपेटोसाइट से, ये इसके इर्द गिर्द आके एक फुल कंप्लीट एचबीवी वायरॉन बना देता है। तो जब इंटर होता है, सरफेस एंटीजन बाहर रहा, न्यूक्लियोइक कैप्सिड अंदर आया, ये न्यूक्लियस में अंदर आया, न्यूक्लियस में अंदर जाके रिलैक्स सर्कुलर डीएनए था। इसके बाद ट्रिपल सी डीएनए पे बना आया, जो मैंने आपको 5 स्टेजेस बनाए थे। 4 स्टेजेस में ये ट्रिपल सी डीएनए में हुआ, 5th में प्रोटीन्स पे आ जाते हैं। इसके बाद फिर ये सी डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करती है, इन 4 टेम्पलेट्स बनाती है। और फर्स्ट में एक टेम्पलेट सरफेस एंटीजन बनवाता है, दूसरे में कैप्सिड ई एंटीजन बनता है, फिर ई एंटीजन में डीएनए के जो स्ट्रैंड्स बनती हैं वो इसमें जब आ जाती हैं तो इट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। और इसके बाद ये न्यूक्लियोकैप्सिड बन जाता है, जो कि अब उसका जो मैंने कहा था कि सरफेस एंटीजन और न्यूक्लियोकैप्सिड है, कि इसमें अब पॉलीमरेज भी होगा, इसमें अब नेगेटिव स्ट्रैंड डीएनए भी होगी। और जब उसके बाद एक सिक्रीट हो जाते हैं तो यहाँ पे ये दोबारा आपस में मिलके एक कंप्लीट वायरॉन बना देता है। और ये वायरॉन या तो सेल्फ इन्फेक्शन करता है इस हेपेटोसाइट्स का, या सराउंडिंग हेपेटोसाइट्स को इन्फेक्ट करता है। एंड दिस इज द वे द होल सर्कल लाइज। आई मस्ट से ये कंप्लीट लाइफ साइकिल के कंप्लीट स्टेप्स नहीं है, लेकिन वो स्टेप्स मैंने खुद ड्रा किए हैं समझाने के लिए कि दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स। ये आपको नहीं भूलने चाहिए कि इन स्टेप्स के हर स्टेप्स के अगेंस्ट ड्रग्स आर इन द पाइपलाइन। इन द फ्यूचर में जो ड्रग्स आएंगी तो वो या तो इधर एंट्री पे काम करेंगी, या यहाँ पे एंट्री पे काम करेंगी, या फिर सीसीडीएनए बनाने पे काम करेंगी, या फिर सीसीडीएनए के ट्रांसक्रिप्शन को रोकने पे काम करेंगी, या फिर इन डिफरेंट स्टेप्स पे काम करेंगी। तो दीज विल बी फ्यूचर ड्रग्स जो कि आएंगी और जो हम एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट वी शुड नॉट फॉरगेट कि दीज आर द वेरी एसेंशियल बेसिक स्टेप्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ द हेपेटोसाइट्स। दिस इज अनदर कॉन्सेप्ट जो आपको मालूम होना चाहिए कि व्हाट डू वी मीन। ये देखिए, ये मैंने एक डायग्रामेटिकली ड्रा की है। दीज आर द डिफरेंट हेपेटोसाइट्स, दीज आर द डिफरेंट, एक पीस ऑफ द लिवर है जिसमें डिफरेंट हेपेटोसाइट्स हैं। और टाइम के साथ साथ अब टू स्टार्ट विद कुछ हेपेटोसाइट्स ये इन्फेक्टेड होंगी, कुछ इन्फेक्टेड नहीं होंगी। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये नंबर ऑफ इन्फेक्टेड हेपेटोसाइट्स विल बी इंक्रीजिंग
इंक्रीजिंग अ टाइम कि मे बी के तमाम हेपेटोसाइट्स ये इन्फेक्ट हो जाएंगे और तमाम एक ही तकरीबन स्टेज में होंगे, या तो तमाम HB एंटीजन पॉजिटिव इन्फेक्शन में होंगे, या फिर हो सकता है इनमें इनके अगेंस्ट जब इम्यूनिटी आती है तो व्हाट हैपन्स कि कुछ हेपेटोसाइट्स पे चेंज कर जाते हैं कि वो इम्यून रिएक्टिव फेज में या जिनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। और सो व्हाट वी सी क्लिनिकली कि ये पेशेंट्स HB एंटीजन पॉजिटिव इन्फेक्शन में है या पॉजिटिव हेपेटाइटिस है, इसको HBe एंटीजन नेगेटिव इन्फेक्शन है या हेपेटाइटिस है, या फिर ये कह लें कि और टर्मिनोलॉजी कि ये इम्यून टॉलरेंट फेज में है या इम्यून एस्केप फेज में है या इम्यून रिएक्टिव फेज में है या इम्यून कंट्रोल फेज में है। ये फेजेस आपको मेजॉरिटी पिक्चर बताती है। यानी जरूरी नहीं है कि इम्यून टॉलरेंट फेज में लिवर के तमाम हेपेटोसाइट्स इम्यून टॉलरेंट फेज में नहीं, मेजॉरिटी और प्रीडोमिनेंटली दे विल बी इम्यून टॉलरेंट फेज। तो हमें इम्यून टॉलरेंट फेज नजर आता है। अगर हम डिटेल में जाएं तो उसमें बाकी भी हेपेटोसाइट्स होंगे जो कुछ तो इम्यून क्लियरेंस फेज में होंगे, कुछ इम्यून कंट्रोल फेज में होंगे और कुछ इम्यून एस्केप फेज में होंगे। तो व्हाट वी सी इट इज नॉट दी होल हेपेटोसाइट्स ऑल आर नन नहीं है, ये एक मेजॉरिटी हेपेटोसाइट्स जिस तरह जिस स्टेज में होते हैं क्लिनिकली हम वो डिटेक्ट कर पाते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कुछ हेपेटोसाइट्स था, पहले इम्यून टॉलरेंट में था, फिर इम्यून रिएक्टिव हो गया, फिर इम्यून कंट्रोल हो गया, लेकिन साथ वाले हेपेटोसाइट्स में प्रोलिफरेशन जा रही है तो वो जो इम्यून कंट्रोल का हेपेटोसाइट्स था वो फिर दोबारा री इन्फेक्ट हो गया। तो दिस हैपन्स, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड दैट्स द रीजन कि हम कहते हैं कि हेपेटाइटिस बी, क्रोनिक हेपेटाइटिस बी एक डायनेमिक डिजीज है। ये फ्लक्चुएट करती है, कभी एक फेज में जाती है, कभी दूसरे फेज में जाती है। एंड रीजन इज कि व्हाट इज द प्रीडोमिनेंट पिक्चर of these hepatocytes. So ये concepts है. This is very important when you think about the treatment of these patients. And how they all these immune control things happen and immune reactive phase happen. This is because of the two types of immunity of the body. Innate immunity, which is in the form of the natural killer cells or some other immune cells, and of course the adaptive immunity, which is the B cells and the T cells, which is the CD4 cells, the T and the CD8 T cells. तो ये एक और इंशाल्लाह इस पे वीडियो में करेंगे कि हाउ द इम्यूनिटी एक्ट्स अगेंस्ट दीज हेपेटोसाइट्स, के कॉन्सेप्ट ये आपको होना चाहिए कि फ्रॉम वेयर दिस इम्यूनिटी थिंग्स हैपन। तो ये इम्यूनिटी डिफरेंट स्टेजेस पे फिर भी काम करती है और दिस इज द रीजन कि इसके भी ड्रग्स आने वाले हैं कि वो जो है ना इस इम्यूनिटी को इन्हांस करते हैं। स्पेशली हमारी जो इंटरफेरॉन के ड्रग्स है ये इम्यूनिटी इन्हांसर्स होते हैं और हमारे जो ओरल ड्रग्स हैं वो प्रोलिफरेशन को कंट्रोल करने वाले होते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं पहले कह चुका था कि दिस इज द बॉडी हाउ इट रिएक्ट्स अगेंस्ट दीज एंटीजन्स, डोंट नीड टू गो इनटू द डिटेल। ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा था दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये हेपेटोसाइट है और ये न्यूक्लियस है। अब यहाँ पे हेपेटाइटिस बी वायरस आया, एंटर हुआ ये cccDNA और यहाँ पे ये प्रोलिफरेट कर रहा है। दिस इज द प्रोलिफरेशन, यानी ये जो आपको ये रेड डार्ट्स नजर आ रहे हैं, दिस शोज द प्रोलिफरेशन। अब जब प्रोलिफरेशन होता है इनिशियली इम्यूनिटी अगर ये इसको टॉलरेट कर रही है, इम्यूनिटी अगर इन हेपेटोसाइट्स पे अटैक नहीं कर रही है और ये प्रोलिफरेट करने जा रहे हैं तो ये DNA लेवल्स काफी ज्यादा से ज्यादा होगा। इसको बोलते हैं HBe एंटीजन पॉजिटिव और HBe एंटीजन नेगेटिव इन्फेक्शन के प्रोलिफरेशन तो हो रही है लेकिन एंटीबॉडी आराम से है, सिर्फ बस गार्ड कर रही है, देख रही है, कहीं साइड पे बैठ के हंस रही है। तो दिस विल बी इधर अगर E एंटीजन पॉजिटिव है और द फर्स्ट फेज ऑफ द इन्फेक्शन विल बी HBe एंटीजन पॉजिटिव इन्फेक्शन और थर्ड फेज जो होगा वो होगा HBe एंटीजन नेगेटिव इन्फेक्शन, या पहले हम इसको बोलते थे क्रोनिक हेपेटाइटिस बी इम्यून टॉलरेंट फेज और क्रोनिक हेपेटाइटिस बी इम्यून कंट्रोल फेज। ठीक है, कंट्रोल फेज में तो प्रोलिफरेशन खत्म हो जाती है लेकिन फर्स्ट फेज में जिसमें प्रोलिफरेट बहुत करता है दैट विल बी दी इम्यून टॉलरेंट फेज। लेकिन जब भी इम्यूनिटी इस पे अटैक करना शुरू करती है तो व्हाट हैपेंस कि वो हेपेटोसाइट्स जो कि जहाँ पे प्रोलिफरेशन हाई लेवल पे होती है उन हेपेटोसाइट्स पे इम्यूनिटी अटैक करती है, उन हेपेटोसाइट्स को मारती है एंड बिकॉज ऑफ द डैमेज ऑफ दोज हेपेटोसाइट्स ALT स्टार्ट्स राइजिंग। तो HBe एंटीजन
पॉजिटिव इन्फेक्शन HBE एंटीजन पॉजिटिव हेपेटाइटिस में चेंज हो जाती है या इम्यून रिएक्टिव फेज में चेंज हो जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए कि अगर प्रोलिफरेशन है और इम्यूनिटी टॉलरेट कर रही है, सो दिस विल बी द इम्यून टॉलरेंट फेज, और अगर इम्यूनिटी रिएक्ट कर रही है तो दिस विल बी द इम्यून कंट्रोल फेज। पहले फेज में ALT विल बी नॉर्मल, दिस फेज में ALT विल बी रेज्ड बिकॉज अब हेपेटोसाइट्स पे अटैक किया जा रहा है बाय द इम्यूनिटी, और वहां पे अब इन्फ्लेमेशन सेट्स इन हो गई है। दिस इज अनदर कॉन्सेप्ट, अगर ये इन्फेक्शन का फेज या इम्यून रिएक्टिव का फेज या हेपेटाइटिस का फेज जितना लंबा होगा, इतना ही ज्यादा इसमें chronic inflammation के साथ we know कि the fibrosis is the element of the chronic inflammation. So longer the duration, longer or heavy or huge amount of the fibrosis will sets in. तो अगर ये fibrosis stage 4 पे पहुंची तो naturally फिर liver regenerate करेगा in terms of the regenerate nodules. तो F4 fibrosis and regenerate nodules is equal to cirrhosis. तो मतलब मेरा कहने का ये कि जितना ही हम इस immune reactive का phase या immune the HBE antigen positive in hepatitis का duration हम कम करेंगे, जितना ही कम करेंगे इतना ही कम से कम fibrosis deposit करेगी और इतना ही chance कम होगा, minimize होगा the patient going developing the cirrhosis as well as developing the hepatoma in these patients. तो ये चीज मैं कह रहा था कि जब ये इम्यूनिटी अटैक करती है, नेक्रो इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी शुरू हो जाती है, और उसके बाद वी ऑल नो कि chronic inflammation is accompanied by the fibrosis, and with the passage of time this fibrosis increases from zero fibrosis to start with, then grade 1, grade 2, grade 3 and grade 4. So this happens there, okay? The stage 1, stage 2, stage 3 fibrosis. So chronic hepatitis B is a lifelong disease. The immunity has central role, and the outcome depends upon age of the acquisition of the infection. कि एक पेशेंट को कब इन्फेक्शन हुई थी, चाइल्डहुड में हुई थी, 10 years पे हुई थी, 20 years पे हुई थी, और इम्यून रिएक्टिव फेज सेट्स इन कि किस स्टेज पे इम्यून रिएक्शन हुआ। एक बच्चे को इन्फेक्शन हुई है एट द बर्थ, लेकिन उसमें इम्यून रिएक्टिव फेज या इन्फेक्शन वो हो सकता है कि वो 20 साल के बाद हो, और एक बच्चे में ऐसा हो सकता है कि वो 5 साल के बाद 5 years के एज में उसमें इम्यून रिएक्टिव फेज या इम्यूनिटी अटैक करना शुरू कर दे। एक बंदा है, 2 बंदे जिनको 30 साल की एज में इन्फेक्शन हुआ, लेकिन एक में इम्यून रिएक्टिव फेज या इम्यूनिटी अटैक कर रही है विद इन 2 years ऑफ एक्विजिशन ऑफ द एक्वायरिंग द इन्फेक्शन, और एक में कर रही है आफ्टर 10 years। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि इम्यून टॉलरेंट फेज किस वक्त स्टार्ट हुआ, या इन्फेक्शन किस वक्त किस एज पे एक्वायर हुआ, और ये इम्यून रिएक्टिव फेज किस एज पे या कितने सालों बाद, कितने अरसे बाद सेट इन हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। तो क्लिनिकल इम्प्लीकेशन ऑफ द इम्यून रिएक्टिव फेज और द HBE एंटीजन पॉजिटिव हेपेटाइटिस का ये है कि एज एट व्हिच इट सेट्स इन, ड्यूरेशन ऑफ इम्यून रिएक्टिव फेज कि ये कितना ये महीनों चला, सालों चला, एंड टाइमिंग ऑफ द HBE एंटीजन सीरोकन्वर्जन कि ये 1 साल बाद HBE एंटीजन सीरो कन्वर्ट किया, 5 साल बाद किया, कितने साल बाद किया, एंड स्टेबिलिटी ऑफ द HBE एंटीजन सीरो कन्वर्जन टाइम ये भी होता है। आई टोल्ड यू कि जरूरी नहीं है कि तमाम हेपेटोसाइट्स में HBE एंटीजन सीरो कन्वर्जन हो, एट टाइम्स कुछ में हो जाता है, कुछ में नहीं होता, और जिनमें हो चुका होता है वो दोबारा रीइन्फेक्ट हो जाते हैं। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि HBE एंटीजन सीरो कन्वर्जन की स्टेबिलिटी है वो कितनी है। इट मीन्स कि जिन हेपेटोसाइट्स में HBE एंटीजन सीरो कन्वर्ट कर गया वो कितने अरसे तक दोबारा री इन्फेक्ट नहीं हो पाते। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड दूसरा है HBE इम्यून एस्केप फेज है, जिसको आजकल हम बोलते हैं HBE एंटीजन नेगेटिव हेपेटाइटिस। तो ये किस स्टेज एज पे हुआ और इसमें इन्फ्लेमेशन का ड्यूरेशन कितना चला। दीज आर द क्लिनिकल इम्प्लीकेशन ऑफ दिस। तो टू समराइज द अर्ली द एज, लेटर इज द सीरो कन्वर्जन, ये आप याद रखिएगा। एंड दूसरी बात ये कि सेकंड एंड थर्ड डिकेड्स ऑफ लाइफ में अमूमन ये इम्यून टॉलरेंट फेज से इम्यून रिएक्टिव फेज बनता है। The genotypes, the 4 main important clinical important genotypes, otherwise H तक हैं। The multivariate analysis showed that high ALT baseline in during the follow-up age more than 30 years, and genotype B were independent factors associated with spontaneous HBE antigen seroconversion in these patients. Or early the seroconversion,
better is the outcome in terms of the stopping of the inflammation and the preventing these cirrhosis onsets as well as the hepatoma डेवलपमेंट. लेकिन क्लिनिकल जीनोटाइप नहीं करते, लेकिन बिकॉज ये आप स्टडीज में देखेंगे, इसलिए मैंने आपको साथ शेयर करना मुनासिब समझा कि कॉन्सेप्ट आ जाए कि what is the significance of these genotypes as well in the natural history of the hepatitis B virus. So now coming to the HB antigen positive hepatitis, जिस तरह के मैंने कहा कि to summarize, early HB antigen seroconversion and shorter duration will decrease the chances of liver cirrhosis and hepatoma onset. We all know कि current therapies के साथ हम करते क्या है कि या तो partial cure ले लेते हैं कि जिसमें HBs antigen पॉजिटिव रहता है, लेकिन ई एंटीजन सीरो कन्वर्ट हो जाता है और डीएनए नेगेटिव हो जाती है, लेकिन cccDNA स्टिल रिमेन्स पॉजिटिव. इसको बोलते हैं पार्शियल क्योर. यार मैक्सिमम हम फंक्शनल क्योर कर सकते हैं कि जिसमें डीएनए तो नेगेटिव हो जाता है, हुआ होता है, ई एंटीजन भी नेगेटिव हुआ होता है, एस एंटीजन भी नेगेटिव हो जाए, लेकिन अगेन द cccDNA remains positive. और ये लिमिटेशन है ऑफ द करंट थेरेपीज, चाहे आप पिगारेट इंटरफेरॉन दे रहे हैं, चाहे आप टेनाफोवेर दे रहे हैं, चाहे एंटाकावेर दे रहे हैं, तो इन सब की ये लिमिटेशन है कि ये cccDNA को क्लियर नहीं कर पाते. तो द अपकमिंग थेरेपीज होंगी, hopefully they will be able to clear the cccDNA and then it will be called the complete cure. Today in most of the patients we get the partial cure. Very lucky we are अगर हम functional cure हमें मिल जाते हैं, लेकिन complete cure will be possible hopefully with the future therapies. So to summarize, the current HBV therapy not in every patient. मैं already जो आपके साथ discuss कर रहा था when to start antiviral therapy, उसे तो बताया था कि हर patients में हम नहीं करते, सिर्फ उस patient में करते हैं कि जहाँ पे indicated होता है. And once we start, we most of the times we can never stop these therapies. Upcoming therapies में होगा क्या कि it will be for every patient इंशाल्लाह, and it will be of defined duration. एक खास लिमिट होगी, it may be months, it may be years, लेकिन उसके बाद जब ये cccDNA को क्लियर कर पाएंगे तो उसके बाद फिर इस ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं हो पाएगी. So this was the reason I wanted to share with you in the previous study the HBV virion structure and its genome, and in this video to share with you what are the different steps of the essential steps of the life cycle of the hepatitis B virus. What does it mean कि हम बोलते हैं कि ये immune tolerant phase है, immune reactive phase है, immune control phase है, immune escape phase है, and what are its clinical implications, and what is the reasons we should be knowing about these steps and these phases, because the upcoming therapies will be hopefully they will be acting against some specific step, and we'll be able then to treat each and every patient and for a defined duration of the therapies. Thank you very much. In the next video, we will be discussing the serological patterns and serology of the hepatitis B virus. Till then, Khuda Hafiz. Thank you very much.